हाँ जी बच्चे, अपना नैक्सट टॉपिक है हाइड्रोजन चैप्टर दे विच हाइड्राइड्स। हाँ जी बेटा, इस तो पहला वाले लैक्चर दे विच आपां कवर किया सी कि आपां हाइड्राइड टर्म कदों यूज़ करते हैं बेटा, वैन हाइड्रोजन हैज़ वैलेंसी और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड्स? The binary compounds of hydrogen with other elements are known as हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी मीन्स देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स का मतलब है कि एक तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा बेसिकली हाइड्रोजन का होना जरूरी है, सैकेंड कंपोनेंट मे बी मैटल, नॉन मैटल, एनी ट्रांजिशन एलीमेंट, एनी इनर ट्रांजिशन एलीमेंट ऑल्सो। ठीक है, बट होने टोटली टू ही चाहिए ने। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्राइड्स। ठीक है, और ये जो हाइड्राइड फॉर्मेशन है बेटा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सारे ही शो करते हैं एक्सेप्ट ओनली नोबल गैसेस। बट हाइड्राइड फॉर्मेशन is not shown by noble gases। ठीक है, नोबल गैसेस के केस दे विच बेटा ये हाइड्राइड फॉर्मेशन शो नहीं हुंदी। ठीक है, तो जनरली दे आर रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, जनरली दे आर represented as EHX। ठीक है, E means any other element, may be metal, non-metal, transition, inner transition element, H denotes hydrogen। ठीक है, and X is the number of hydrogen present। For example, in case of alkali metals, ठीक है, this is your lithium hydride, sodium hydride। ठीक है, in case of alkaline earth metals it is CaH2, MgH2। ठीक है, so this is the general representation of hydride। but in some cases it is represented as EMHN। ठीक है, MN you can use any suffix A, B, X, Y means they should be different। ठीक है, for example in 13th group elements like diborane। ठीक है, so this is a exceptional case, generally most commonly they are represented by this formula EHX। so next is the classification of hydrides। next is your classification। so broadly they are classified into three main subtypes। ठीक है, first is your ionic or salt like hydrides। ठीक है, second one is your covalent or molecular hydrides। and third one is metallic or interstitial hydrides। ठीक है बेटा,
So these are the three subtypes of hydrides. First one is your ionic or salt like hydride, second one is covalent or molecular, and third one is metallic or interstitial hydrides. Now we will discuss them one by one. So first is your ionic or salt like hydrides. Ionic or salt like hydrides. So these type of hydrides are formed by the combination of hydrogen with highly electropositive elements. ठीक है बेटा, किद्दां फॉर्म हुंदे ने? by the combination of hydrogen with highly electropositive elements. ठीक है, electropositive means which can donate their electrons easily. Or I think all of us know that group number 1 and 2 are highly electropositive elements. It means they are formed by the s block elements. s block पता है ना बेटा की हुंदा है? ग्रुप 1 and 2. 1 and 2. It means they are formed by the s block elements with hydrogen. ठीक है, जदों s block elements hydrogen नाल combine करते हैं then we will get ionic or salt like hydrides. Clear बेटा? So next is their preparation. So these type of hydrides are prepared by the direct combination of metals with hydrogen. So they are prepared by the direct combination of metals means group 1 and 2 means s block elements with hydrogen. Clear beta? Direct combination of metals with hydrogen. For example, you can take any example of group number 1 and 2. If we treat lithium with hydrogen, we will get lithium hydride. ठीक है, upon balancing this. ठीक है, similarly we can take any example of second group, calcium plus hydrogen, and we will get calcium hydride. So these are prepared by the direct combination of metals means s block elements with hydrogen. ठीक है बेटा, metals means highly electropositive elements. ठीक है, next is properties of ionic hydrides. So these are the properties. So first property, they are usually white or लाइट ग्रे इन कलर. ठीक है, जो इन्हां दा कलर हुंदा है बेटा यूजुअली वाइट या लाइट ग्रे. दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इन्हां दे जो मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट्स ने बेटा वो काफ़ी ज़्यादा होंदे ने. ठीक है, दे कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी. ठीक है, मीन्स इन्हां चो इलैक्ट्रिसिटी पास हो सकती है एंड
release hydrogen gas at एनोड। ठीक है बेटा, ਹੁਣ देखो कहते इन्हां चों इलैक्ट्रिसिटी पास भी होंदी है बेटा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस इलैक्ट्रोड ते डिपॉजिट होंदी है बेटा, एनोड के उपर। देखो बेटा फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर लिथियम हाइड्राइड, it will dissociate into its ion as lithium positive and hydrogen negative। ठीक है, तुसी याद रखना है बेटा हाइड्राइड से केस दे विच हमेशा हाइड्रोजन दे उपर नेगेटिव चार्ज होएगा। ठीक है, सो नाउ एट एनोड दे उपर की होएगा, दिस H नेगेटिव विल लूज इट्स इलैक्ट्रॉन। ठीक है, हुण इत्थे दी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा -1 और इत्थे की हो जाएगी 0। ठीक है, मीनस इहदी की होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दिस इलैक्ट्रॉन, ठीक है, नाउ यहाँ आप कह सकते हैं कि इस तरह सारे जो हाइड्राइड आयन्स होंगे अपने अपने इलैक्ट्रॉन लूज कर देंगे और इदां दे हाइड्रोजन एटम्स मिल के हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देंगे बेटा एट एनोड। ठीक है, और कैथोड के उपर की रिएक्शन होएगी बेटा, कैथोड के उपर ये जो तुहाडा लिथियम पॉजिटिव है, ठीक है, ये इस इलैक्ट्रॉन को एक्सैप्ट करके लिथियम मैटल दे विच चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो when the ionic hydrides are treated with electricity they are dissociated into their ions and hydrogen gas is liberated at anode। क्लियर बेटा, एनोड के उपर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होएगी और कैथोड के उपर कॉरस्पॉन्डिंग मैटल डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज their densities are higher than the corresponding metals। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ, ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੈਟਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇ ਆਰ thermally stable in nature। ठीक है, means upon heating they do not dissociate easily into their ions। ठीक है, जल्दी जल्दी ये dissociate नहीं करते। ठीक है, ये अप टू 775 कैल्विन तक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे ने एंड देयर स्टेबिलिटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर असी फर्स्ट ग्रुप की गल करिए, लिथियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल दैन सोडियम हाइड्राइड, मोर स्टेबल दैन पोटाशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम हाइड्राइड। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप की गल करिए, बेरिलियम हाइड्राइड मोर स्टेबल दैन मैग्नीशियम, मोर दैन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एट्सेट्रा। ठीक है, सो देयर स्टेबिलिटी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्सीजन, on treatment with oxygen they got oxidized and form corresponding oxides। ठीक है, जदों आपां इन्हां नूं ऑक्सीजन नाल ट्रीट करते हैं दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ट्रीट लिथियम हाइड्राइड विद ऑक्सीजन वी गेट लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर।
ठीक है, अपॉन बैलेंसिंग दिस वन, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू ट्रीट कैल्शियम हाइड्राइड विथ ऑक्सीजन वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है बेटा। So this is already balanced, means on treatment with oxygen they got oxidized and form corresponding oxides, lithium oxides and calcium oxide. Next, on treatment with water they release hydrogen gas and resulting solution is basic in nature, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल अगेन we can take the example of lithium hydride on treatment with water it will form lithium hydroxide, ठीक है। simply we can write it as lithium hydroxide plus hydrogen gas is released, ठीक है। so if we put 2 next 2 and 2 now it is balanced, ठीक है। so this is your balanced chemical equation. Similarly if we treat calcium hydride with water we will get calcium hydroxide plus hydrogen gas, ठीक है बेटा। so now this one, ठीक है। so these because of the formation of this lithium hydroxide and your calcium hydroxide this solution is basic in nature, clear beta। next property they act as powerful reducing agents। रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब ਹੁੰਦਾ बेटा किसी ਨੂੰ रिड्यूस करनगे और खुद की हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। एक्चुअली बेटा ये जो टर्म्स ने रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ये ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा क्लीयर होणगियां आफ्टर द रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, ठीक है। तो इस करके इसनों तुसी हले ज़्यादा दिमाग ते बर्डन नहीं पाना। वट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो असी इसकी रिएक्शन याद करनी है अगर तुहाडे तो हो सके। मैं सब तो सिंपल रिएक्शन करवा रही हाँ। फॉर एग्जाम्पल they reduce carbon dioxide to corresponding formats, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जे असी गल करिए सोडियम हाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विथ carbon dioxide we will get sodium formate, ठीक है। and it is balanced HCOONA plus gas will be released, हाँ जी बेटा की कर रहे हैं ये दे एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स
मीनस दे रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दे रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिस सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो इस दे विच जो इसने कार्बन डाइऑक्साइड नू बेसिकली की किया बेटा रिड्यूस किया है। इत्थे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4 और इस केस दे विच इहदी है बेटा +2। ठीक है, ये चीज़ां हले तुहानूं बाद विच समझ आउणगीआं। ठीक है, उस टाइम तो तुहाडा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएगा वट डू यू मीन बाय रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड, they are also used in the preparation of complex hydrides। ठीक है बेटा, जो complex hydrides ने उहदे विच आपां मोस्टली दो एग्जाम्पल्स लैने आ, लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड and sodium borohydrides। These hydrides are known as complex hydrides। ठीक है, तो असी इन्हां सिंपल हाइड्राइड्स नू यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ complex hydrides। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ट्रीट lithium हाइड्राइड with aluminium chloride, ठीक है, we get lithium aluminium hydride plus lithium chloride। ठीक है, we have to balance this equation। if we write 6 over here, ठीक है, then you and 2 over here, then total there are 8। so this is your balanced chemical equation। ठीक है, so these are also used in the preparation of complex hydrides। clear beta? so this is all about the properties of ionic or salt like hydrides and uses of this hydride। they are usually used as a पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, मेन इन्होंने यूज़ किया है कि दे एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है बेटा, सेकेंड टाइप इज़ योर कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। हाँ जी, सेकेंड इज कोवलेंट एंड मॉलिक्यूलर hydrides। so these type of hydrides are formed by the combination of hydrogen with electronegative elements। electronegative elements means usually p block elements except your noble gases। so these are formed by the combination of hydrogen with p block elements except noble gases। ठीक है, मीन्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 17। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाईबोरेन, ठीक है, साइलेन, मीथेन। ठीक है, मीन्स जेडे पी ब्लॉक एलीमेंट्स के हाइड्राइड्स बनते हैं बेटा, उन्हों का जो मोस्टली नेम दा एंड करते हैं आप, दे आर यूजुअली नेम्ड by the ending word "ane"। ठीक है, एन, जिदा डाईबोरेन, डाईबोरेन का मतलब की है बेटा B2H6, साइलेन,
ठीक है, SiH4, ठीक है। थर्ड लै सकते हैं मीथेन, ठीक है, CH4, ठीक है। फॉस्फेन, ठीक है, PH3, बट नाउ अडेज इंस्टेड ऑफ फॉस्फेन वी यूज द टर्म फॉस्फीन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज योर preparation, how they are prepared। हाँ जी बेटा, एक इन्हां दी जनरल इंट्रोडक्शन दे विच एक चीज़ स्किप होगी कि वैन दे आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ 17th ग्रुप एलीमेंट्स, ठीक है। प्रैपरेशन तो पहला चलो आप और डिस्कस कर लेने हैं, ठीक है। इन केस ऑफ 17th ग्रुप ठीक है, फॉर एग्जांपल HF बन रहा है, HCl बन रहा है, ठीक है। इन दिस केस इन एडिशन टू नॉर्मल वीक वाटर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अ न्यू टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसनों असी पूरी डिटेल दे विच स्टडी कर चुके हैं बेटा इन द प्रीवियस यूनिट, दैट इज़ योर कैमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। उहदे विच आपां शो कीता सी कि जो HF मॉलीक्यूल है उसका जो इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है वो अगले मॉलीक्यूल दे हाइड्रोजन दे नाल की शो कर सकता हुंदा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ 17th ग्रुप, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेपरेशन, ठीक है। सो हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, फर्स्ट अगेन बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बाय द डायरेक्ट combination, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्रिपेयर HF, so we have to treat H2 and F2 and we will get hydrogen fluoride, ठीक है। सिमिलरली H2 and O2 we will get water, ठीक है। अपॉन बैलेंसिंग we will get this equation, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द 17th ग्रुप, ठीक है, H2 and N2 we will get NH3, ठीक है। सो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और यू कैन से कोवलेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। सो फर्स्ट मेथड इज बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड मेथड्स दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, they can also be prepared by the treatment of borides, phosphides, nitrites, etc. with water, ठीक है। असी इन्होंने इस मैथड नाल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ट्रीट मैग्नीशियम बोराइड with water, if we treat magnesium boride with water we get magnesium hydroxide plus diborane, ठीक है। की बन रहा बेटा मैग्नीशियम बोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर वी आर गेटिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइबोरेन मीन्स हाइड्राइड ऑफ बोरोन। Similarly, if we treat calcium phosphide with water, we get calcium hydroxide plus phosphine, hydride of phosphorus. I have not balanced this equation. Upon balancing, we will get 3. Let me check. It is balanced. We have how many oxygen? 6. So we have to put 6 over here. ठीक है. Now it is balanced. Similarly, if we put 3, then again 6 plus 3, 2, 6 and
6, again it is balanced. ठीक है, so they can also be prepared by the treatment of borides, phosphides, nitrites etc. with water. So these are the methods of preparation of covalent or molecular hydrides. Next are properties. Properties of covalent or molecular hydrides. So first property is they are usually soft in nature. ठीक है, they have lower melting and boiling points. ठीक है, they have lower melting and boiling points. They have low electrical conductivity. ठीक है, जो इन्हां दे विच इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुंदी है, दिस इज़ कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. ठीक है, दियर प्रॉपर्टीज depend upon the electronegativity difference between hydrogen and combining elements. ठीक है बेटा, इन्हां दियां जो प्रॉपर्टीज़ ने वो ज़्यादातर डिपेंड करदियां ने कि इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस कितना है जो थोड़ा हाइड्रोजन तो उस दे नाल जो कंबाइनिंग एलीमेंट्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिवें असीं गल करिए कि मोस्टली इन्हां दे विच जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है कोवलेंट हुंदी है. ठीक है, जिद्दां CH4. ठीक है, ऑल ऑफ अस नो CH4 हैज़ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. ठीक है, and this form is purely covalent in nature. But if we take the example of HF, ठीक है, it has partial ionic character also. ठीक है, and in this case we know in addition to normal covalent bonding it has also hydrogen bonding. ठीक है, मीनस जो इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ ने अल्टीमेटली बेटा वो डिपेंड करदियां ने अपॉन द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द सेकेंड कंबाइनिंग एलिमेंट. ठीक है, बेस्ड अपॉन द इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. ठीक है, दे आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 3 सब टाइप्स. ठीक है, असी इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किद्दां दी है. ठीक है, सेंट्रल जो दूसरा एलीमेंट है बेटा हाइड्रोजन तो है ही है, उस तो बाद जो दूसरा एलीमेंट है उस दे अराउंड वैलेंस शैल दे विच इलैक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किद्दां दी है. दे कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू 3 सब टाइप्स. ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन they can be further divided into 3 types. ठीक है, फर्स्ट असी लै सकते हैं बेटा, फर्स्ट वन इज़ इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स. Electron deficient. Second one is electron
precise molecules, and third one is electron rich molecules. ठीक है, तीन लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। तो असी फर्स्ट अगर लीए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दे विच बेटा की हुंदा है, इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट्स, 13th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुसी कोशिश करो B2H6 बोरोन हाइड्राइड, ठीक है, Al2H6, इफ वी ड्रॉ, ठीक है, द Lewis structure of these molecules, we will notice that there are deficiency of 2 electrons। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो B2H6, B2H6, so this is your B2H6. There is no electron present between these two boron atoms। ठीक है, इसमें आप बेटा स्टडी करना है इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दिस केस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, जिहदे विच आपां उस बॉन्ड नूं नाम दिंदे आ मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड या 3 इलैक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ठीक है, या उसनूं किया जाता है बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो वो आप उस टाइम डिटेल डिस्कस करांगे। तो इदां दे मॉलिक्यूल्स देखो हुण इहदे विच टोटल 12 इलैक्ट्रॉन्स ने, और फॉर प्रॉपर बॉन्डिंग देयर शुड बी 2 इलैक्ट्रॉन्स ओवर हियर ऑल्सो, देयर शुड बी टोटल 14 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसनूं किया जाता बेटा, सॉरी, 3 सेंटर इलैक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ठीक है, या मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड। क्लियर बेटा? सो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सैकेंड असी लै रहे हैं इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है जिन्ने बॉन्डिंग लिए रिक्वायर्ड है वो सारे इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने। इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज ये किहदे विच हुंदे ने बेटा? 14th ग्रुप एलीमेंट्स दे विच। ठीक है, 14th ग्रुप एलीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल CH4। ठीक है, CH4 दे विच वी नो carbon has sufficient electron to make bond with 4 hydrogens। थर्ड आ गया बेटा तुहाडा इलैक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। इस दे विच की हुंदा बेटा, जिन्ने तुहाडी बॉन्डिंग लिए रिक्वायर्ड इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने उस तो इलावा भी कुछ इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े ओह एज लोन पेयर्स प्रेजेंट हुंदे ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, वाटर दे विच सानू पता है कि दिस इज़ योर वाटर, इन एडिशन टू दिस ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अमोनिया, ठीक है, so this is your ammonia and it has 1 lone pair of electron। ठीक है, so these type of molecules are known as electron rich molecules। ठीक है, and these molecules also show the phenomena of hydrogen bonding। ठीक है, this oxygen can make hydrogen bonding with hydrogen of another molecule, and in this case this nitrogen can make hydrogen bonding with hydrogen of second molecule। So that's why these molecules exist as associated molecules। Associated molecules means जुड़े हुंदे ने बेटा ये molecules आपस दे विच। ठीक है, so this is all about your covalent and you can say molecular hydrides। So third one is your metallic or interstitial hydrides। Metallic or
interstitial hydrides. So metallic or interstitial hydrides, these are formed by the combination of D and F block elements with the hydrogens. So these are formed by the combination of D block and F block elements with hydrogen. ठीक है बेटा, जो डी ब्लॉक एलीमेंट्स या एफ ब्लॉक एलीमेंट्स कंबाइन करते हैं विद हाइड्रोजन, दैट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर नोन एज मैटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. डी ब्लॉक एलीमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 5. ठीक है, 3, 4, 5 जो ग्रुप नंबर है उसके जो एलीमेंट्स ने वो ज़्यादा हाइड्राइड्स बनाते हैं. 6th ग्रुप दे विच ओनली क्रोमियम फ्रॉम हाइड्राइड, ओनली क्रोमियम. ठीक है, क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड्स. ठीक है, और जो 7th to 9th ग्रुप है, no hydride formation is there, no hydrides are formed. So these groups ਦਾ जो एक गैप आंदा है उसनों कहा जाता है हाइड्राइड गैप. ठीक है, इस तो बाद 10, 11, 12 ये फिर हाइड्राइड फॉर्मेशन शो करते हैं. ठीक है, सब तो ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्राइड फॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 3 to 5. ठीक है, सिमिलरली जो तुहाडा एफ ब्लॉक एलीमेंट्स ने लैंथेनॉइड्स एज वेल एज एक्टिनॉइड्स दे ऑल्सो शो हाइड्राइड फॉर्मेशन. ठीक है, तो हुण इन्हां दी प्रैपरेशन किद्दां हुंदी है. ठीक है, फॉर द प्रैपरेशन की हुंदा बेटा, दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. हुण इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का मतलब की हुंदा बेटा कि कोई भी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलीमेंट है उसका अपना एक लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है. क्रिस्टल लैटिस का मतलब है कि मान लो कि वह अपने एक डेफिनेट अरेंजमेंट दे विच पिया है. ठीक है, मैं तुहानूं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रही हाँ कि कोई भी ट्रांजिशन एलीमेंट्स ने उसके जो एटम्स ने वो आपस दे विच जुड़े हुए ने. ठीक है, मोस्टली असी एटम्स नूं सफीयर्स की फॉर्म्स दे विच शो करते हैं. बेटा मेरे को प्रॉपर शेप नहीं बन रही, ये एग्जैक्टली सब दी शेप सेम हुंदी ने. ठीक है, सफेरिकल हुंदे ने सारे, इक्को जे स्फीयर्स हुंदे ने. ठीक है, ये थोड़ा जिहा ड्रॉ करन च प्रॉब्लम आ रही है मैनूं बेटे इत्थे. ठीक है, तो आ जिहड़ियां बेटा स्पेसिस बचियां ने. ठीक है, सो दीज स्पेसिस आर नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स. दीज स्पेसिस आर योर इंटरस्टिशियल साइट्स जिथे एटम्स ने आपस दे विच जुड़ना सी और खाली जगह बची हुई है. ठीक है, तो हुण ये जो मैटेलिक हाइड्राइड्स ने या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ने ये किद्दां बनते हैं बेटा, असी मैटल नूं सूटेबल टैंपरेचर तक हीट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इसनूं प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो जदों आपां इसनूं सूटेबल टैंपरेचर ते प्रैशर ते हीट करते हैं तो हाइड्रोजन दे जो एटम्स ने दे गैट इंट्रैप्ड into this interstitial sites. ठीक है, जिहड़ियां इंटरस्टिशियल साइट्स ने इत्थे आके जो हाइड्रोजन दे एटम्स ने दे गॉट एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स दे विच आके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट तुहाडे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बन जाते हैं. So they can be formed by the heating of given transition element or intertransition element at suitable temperature and pressure so that hydrogen can get absorbed and entrapped into interstitial sites. So these type of hydrides are known as interstitial hydrides. Next, the properties
सो प्रॉपर्टीज़ दे विच इसदे की है, नाम तो ही क्लीयर है कि दे आर मेटैलिक इन नेचर, ठीक है, बिकॉज नाम ही मेटैलिक है। सो दे आर मेटैलिक इन नेचर। अगर मेटैलिक ने बेटा तो सारिया प्रॉपर्टीज़ होनगियां मैटल्स वालियां। मेटैलिक लस्चर होएगा, हार्ड होणगे, इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट करनगे, इलैक्ट्रो पॉजिटिव होणगे, ठीक है। नैक्सट, देयर densities are lower than the corresponding metals, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨॉन स्टोशियोमेट्रिक, ठीक है। नॉन स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब होंदा है कि जो इन्हां दे हाइड्राइड्स बनते हैं बेटा उहदे विच जो इन्हां दी रेशो है वो इंटैग्रल रेशो नहीं हुंदी। फॉर एग्जाम्पल जो टाइटेनियम अपना हाइड्राइड बनाता है, ठीक है, तो जिहड़ी ये टाइटेनियम और हाइड्रोजन की रेशो है, इंटैग्रल रेशो मीनस 1:1 या 1:2 या 1 मतलब सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है, 2:1 3:1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो इन्हां दी रेशो है वो होल नंबर रेशो नहीं हुंदी, इट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है, डेसिमल्स की फॉर्म दे विच भी हो सकती है। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटैलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। दीज आर मेटैलिक मीनस मैटल्स वालियां सारियां प्रॉपर्टीज़ होंगियां बेटा। मेटैलिक लस्चर होएगा, हार्ड होंगे थोड़े जे, ठीक है, और इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट करनगे, ठीक है बेटा। एंड दे आर यूजुअली नॉन स्टोशियोमेट्रिक इन नेचर मीन्स देयर रेशोज विल बी नॉट अ सिंपल इंटेग्रल रेशो। क्लियर बेटा? विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक, दैट इज़ योर मेटैलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, थैंक यू।